SK Duggal. So let's start today's class. So let us just read this problem. So there is two numerical problem example from two different books. So I will show you the approach of design. So this is the important thing you must understand the approach of design. Okay, so let's just start reading this. Okay, see here it has said that design a roof truss, rafter bracing, purlin, tie runner, side runner, and eave girder. So we will, for now, we will only focus on designing purlin. So which part does purlin called? So purlin is the beam which rest over the trusses. Well, if this is the roof truss, okay, if this is the roof truss, so there will be a next truss in this place, right? So there will be another truss in this place. So in this manner, all the roof trusses will lie in this way. And now the beam which will be resting upon these roof trusses is called as purlin. So this is nothing but a continuous beam. Over this beam, the shading or the asbestos are provided. Okay. So or now we will design the purlin part. So eave girder for an industrial building located at Guwahati with a span of 20 meter and a length of 50 meter. Okay, the roofing is galvanized iron sheeting. Basic wind speed is 50 meter per second. So here see a town is also given and the wind basic speed is also given. So you do not have to find out this from the appendix A IS 87 part 3. It is given. Okay, so if this basic wind speed was not given, then you have to track that basic wind speed from that corresponding IS code appendix A corresponding to that Guwahati. Okay, so 50 meter per second, and the terrain is an open industrial area. Just a minute, huh? Open industrial area. So here a terrain category has been also mentioned. See, so building is class B. This is also given. Building with a clear height of 8 meter at the eaves. So we will now all picturize this in our structural model. Okay. So first, as a designer, you have to adopt or you have to take a type of truss. एक रूफ ट्रस को डिजाइन करने के पहले तुम पहले अपने तरीके का कोई एक ट्रस चूज कर. It has taken a trapezoidal truss is adopted. See, this kind of truss has been adopted, and in this book this kind of trusses are adopted. So this is up to you, okay, what kind of truss you will adopt. So as per that, that member section design will occur. Okay, so now first you have to select a type of truss. So here they have, it is, see, the roof slope is 1 to 5, mean the slope is in this way. Sorry, if this is 1, so this will be 5. In that way, the slope is, the roof slope is provided. This, if this is 1, this will be 5. Okay. So now, and end depth of 1 meter. End depth mean here, this is end depth. Okay. This is 1 meter. And see, in question, it has been given that the span is here for 20 meter. See, with a span of 20 meter and length of 50 meter, mean
अगर तुम इसको ऐसे तुम इधर से ऑब्जर्व करोगे, सी एज यू आर वॉचिंग फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर दिस स्ट्रक्चर, ओके, सो दिस पार्ट इज 20 एंड दिस पार्ट इज 50. सो ये 50 क्या, ये लेंथ है और ये स्पैन है. तो ये हम लोग डिजाइन करेंगे, ओके. ये अप्रोक्सीमेट स्पैन टू डेप्थ रेशियो इज अबाउट L/8 to L/12. सो ये जो रेंज है, इसी रेंज में हम लोग स्पैन टू डेप्थ रेशियो देखते हैं. Adopt a depth of 3 meter at mid span. So what is the depth we will take? The depth we will take is this. Just a minute. Okay. So the depth we will take is this. So what is this? The end depth is given 1 here, and we have taken this to be 2 meters. So the total depth is 3 meter. Okay. So now adopt a depth of 3 meter at mid span. तो span to depth ratio क्या बनेगा? ये तो span है 20 और ये total है 3. So dividing this, we will get this. So hence the application of this span to depth ratio is mainly while we will calculate the wind load. While we calculate the wind load, then that span to depth ratio is much. But in that case, in some of the questions, it might be mentioned that take a truss where take a truss. Well, here the truss spacing is not provided. That we can calculate by ourselves. But in some places in the question, it may be given that the pitch is 1/5. That the pitch ratio is 1/5. Okay, so in this rise is nothing but this. This is also called as rise. You can also say this to be depth. Also, you can say this to be rise. So this span to depth ratio, as we are just talking right here, in some question, this ratio might be given. So if this ratio is given and you know the exact span of this part, so if you put the span here in the place of 20, then what will be the rise? The rise will be 20/5, 4. Okay. But in that case, this is given. So that is why we are adopting that. Okay. So the truss spacing may be the range of 1/4 to 1/5 of the span. Hence adopt a spacing of 20/4. मीन यहाँ पे देखो, ये हमारा जो ट्रस स्पेसिंग बनेगा, ट्रस स्पेसिंग मतलब कि ये पूरा जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है ना, तो ये ट्रस तो तुम पहले ये सामने वाला ट्रस ये देख रहे हो, यू आर ऑब्जर्विंग दैट फ्रंट फेस ट्रस. Next, there will be a continuous truss laid upon this structure, isn't it? So what will be that spacing? So there is also a regulation which has been given to provide the spacing, which is nothing but the spacing may be range up to 1/4 to 1/5 of the span length. Well, here our so hence we can adopt is that 20 divided by, you can take as 4, you can take as 5. Okay, so you can take this. So by if we can see that 20/4 will give me 5 or 20/5 will give me 4. So they have taken 20/4. So here see 20/4 will be 5 meter. So with having a 5 meter spacing, you have to put all the roof trusses along to this length. Okay, तो यहाँ पे कितना सारा ट्रस यहाँ पे बैठेगा, ये हर 5 मीटर के स्पेसिंग में दूरी में अगर बैठेगा तो ये 50 मीटर में कितना सारा रूफ एकोमोडेट होगा, 10 number of, actually not 10, there will be in front and end. So there will be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So there will be 11 roof truss and the gap will be 10. In between this gap will be number of 10. Okay.
So in this way, we will calculate this. The number of days is equal to 50 divided by 5. Well, ये डे मतलब के ये एक एक मैं जो एक बताई as 10. Okay, so now mean that 50 divided by 5, actually that base is nothing but that spacing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, these are the base here. The plan of building and elevation of truss is shown in here in this figure. Okay, let's move on to this. So now we will directly move on to the loadings. So we have assigned up to now, we have almost assigned the dimensions, the specifications, what will be the type of process, what will be its dimension. So we have calculated all those parts. So now we will calculate the loadings. अब उसके ऊपर लोड का क्या आएगा वो देख लेंगे. Okay, so now see over this roof truss, see over this roof truss, ये roof truss के ऊपर डेड लोड क्या मिलेगा, डेड लोड क्या आएगा इस रूफ ट्रस के ऊपर. देखो ये जो रूफ ट्रस है इस ट्रस के ऊपर डेड लोड जो आएगा वो है कि एक शीट उसके ऊपर लगेगा, है ना. मतलब कि ये ऐसा तो ट्रस नहीं बनेगा कि सिर्फ रूफ बना दिए और ऊपर कोई शेडिंग नहीं दिए. तो देयर विल बी अ डेड लोड ऑफ शेडिंग. So this has been mentioned in our question that the roofing is galvanized iron sheeting. Okay, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जीआई शीटिंग का जो ये लोड लिया गया है, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम IS 875 पार्ट 2, जहां पे हमारा लोडिंग के बारे में दिया गया. जस्ट लेट मी, यस, सी फॉर IS 875 part 1 the code is about dead load. Okay, and IS 875 part 2 this code is about imposed load or live load, and IS 875 part 3 is about our wind load. Remember this thing. Okay, so from this part 1 the date we are doing here the hands on examples, मैं तुम लोगों के साथ ही ये सॉल्व कर रही हूँ. So there will be an entire discussion about this. Yes, metal sheeting, protected galvanized steel. Yes, in this. So see here from this 39 metal sheeting protected galvanized steel. So यहाँ पे उसके ऊपर इस कोड में IS 277 1985 में इसमें और भी ज्यादा एक्सप्लेन वे में दिया गया है. तो यहाँ से ही हमारा जो this is all about weight per mass. This is given. So as per the thickness, the weight per mass is given. So here majorly they have adopted C 0.085 kilonewton per meter square, and here it is given as kilonewton and per kg. So kilonewton, this is in kilonewton they have taken, and as per the thickness, and this is for the meter square. So as per thickness they might have taken this one. See, class 1 for individual for part thickness mean 1 they have taken 0.084 kilonewton, and these are all in meter square, per meter square. Okay, so they have adopted this from here per meter wise. So per meter they have taken this value here. So now we can take it all these values. So here the fixing, the services, they can take all these values from here. Actually you have to read this IS code very minutely here. Every material specification and its unit weight is provided, is given here. Okay, so see majorly what happened for services, services mean that
the nut, the bolts, which will be used to attach that sheeting with the purlin, those are called servicing. For that, they have taken all these values. Dead load for fixing, for services. So they have taken all these values. So the total value is this 0.210. See, द अप्रोच ऑफ टूडेज डिजाइन, मैं जो यहाँ पे डिजाइन अभी तुम लोगों को दिखा रही हूँ, ये मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आएगा तुम लोगों को एकदम मेमोराइज करना पड़ेगा. इट इज नथिंग अबाउट दैट. आई एम शोइंग यू दैट अप्रोच कि अगर तुम प्रैक्टिकली कहीं साइट पे जॉब करोगे तो तुमको ऐसे ही सब काम करना पड़ेगा. ऐसे कोड से लेके झटापट से वहां का क्या वैल्यू हो सकता है, कहाँ से ले रहे हैं, ऐसे तुमको देखना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा. आई एम नॉट फोकसिंग अबाउट द कैलकुलेशन और द प्रॉब्लम स्टेप्स. ओके, आई एम शोइंग यू द डिजाइन अप्रोच. तो ये जीआई शीटिंग डेड लोड में आएगा, फिक्सिंग आएगा, सर्विसेज आएगा. तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, देखो ये वैल्यू जानना आज के दिन में टफ नहीं है, ये अगर गूगल में भी सर्च करोगे मिल जाएगा. बट वेयर दीज आर कमिंग यू नीड टू नो दैट. ओके, so these values may vary. These values cannot remain strictly constant. Okay, so for not focusing on these values, we will look after about only the design approach. So the total load will be accumulating all these values. Okay, तो ये तो है स्ट्रेस. देखो पर मीटर स्क्वायर में 0.85, 0.25, 1.1, 0.085, 0.025, 0.1 किलो न्यूटन का स्ट्रेस आएगा. Okay, so now for 5 meter bay, see here bay mean this is the bay, this is the bay. Okay, so for 5 meter base, roof dead load will be that this is the total dead load 0.210 kilonewton per meter square into 20 into 5. Well, what is 20? देखो, अगर पर मीटर स्क्वायर में इतना टोटल डेड लोड आ रहा है तो हमारे हर बे में, मतलब ये हमारा एक बे है, तो इस बे का एरिया कितना है, ये तो 20 into 5 है. So that load into this area, we will get the load over that individual base. So this is that value. ये हमारा क्या रूफ का जो डेड लोड है इसका वैल्यू 21 किलो न्यूटन. सो वेट ऑफ पर्लिन, अब पर्लिन का वेट कितना आएगा. पर्लिन मतलब जैसे कि मैं बताई, दिस इज अ कंटिन्यूअस बीम विच विल रेस्ट ओवर द रूफ ट्रसेस. सो एज्यूमिंग 70 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो पता नहीं, तो दैट इज व्हाई एब्रप्टली वी हैव कंसीडर्ड दिस वैल्यू 70 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आफ्टर दैट while we will design those members, उसके बाद जब हम कंटिन्यूअस बीम का मेंबर डिजाइन करेंगे तब जो सेक्शन हमको अलॉट होगा उस सेक्शन के वाइज हम इसका वेट जो है कंसीडर कर लेंगे पर दिन का. ओके, so now right now we have considered that 70 newton per meter square equal to 0.07 into 5 into 20, which is 7 kilonewton. Okay, so what will be the self weight of one truss? देखो, पहले एक बे का जो डेड लोड है वो निकाल लिए, फिर उस रूफ ट्रस के ऊपर आने वाला जो पर्लिन का वेट है वो निकाल लिए. मतलब कि ये हमारा रूफ ट्रस है ना, तो ये इसके ऊपर जो डेड लोड आएगा, मतलब कि ये ऐसे शीट ये ऐसे जीआई शीट ऐसे बैठेगा इसके ऊपर, और ये किसके ऊपर रहेगा, ये जीआई शीट का तो लोड हम निकाल लिए, मतलब ये जीआई शीट फिक्सिंग सर्विस सब इसी इसी फिनिशिंग के ऊपर चला जाएगा. तो ये डेड लोड है, ये पहले कैलकुलेट कर लिए थे, हम फोर्स निकाल लिए मल्टीप्लाइंग विद एरिया. इसके बाद क्या, ये शीट का जो डेड लोड है ये तो पर्लिन के ऊपर आएगा ना, ये पर्लिन तो ऐसे रहेगा एज अ कंटिन्यूअस बीम, तो ये पर्लिन का भी डेड लोड करना पड़ेगा. तो ये हम जो लोड एज्यूम कर लिए उससे एरिया मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमको मिल गया वेट ऑफ पर्लिन.
अब सेल्फ वेट ऑफ वन ट्रस, अब ये पर्लिन जो है ये तो ट्रस के ऊपर आएगा, फिर ट्रस का डेड लोड निकाल लेते हैं, मतलब कि सेल्फ वेट जो है। तो ये देखो, दिस हैज बीन कंसिडर्ड हियर, जस्ट अ मिनट, सो 0.1067 into 5 into 20, देखो for welded sheet roof truss the self weight is given approximately by this, ओके ऐसा एक अप्रोक्सीमेट वेल्डेड शीट ऑफ रूफ ट्रस का सेल्फ वेट ऐसे कंसीडर किया गया है। तो दैट लोड इनटू एरिया वी विल गेट द सेल्फ वेट ऑफ वन ट्रस, ओके वी विल गेट द सेल्फ वेट ऑफ वन ट्रस। तो एक ये ट्रस का भी सेल्फ वेट हमको मिल गया जो कि ये 10.67 है। तो ये पूरा ये जितना सारा लोड है 21 प्लस 7 प्लस 10.67 करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये हमारा टोटल डेड लोड, टोटल डेड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर। ये डेड लोड था हमारा कि एकदम ऊपर का जो डेड लोड है, एकदम टॉप स्ट्रक्चर का टॉप का डेड लोड किसका रहेगा, शीट का ही रहेगा। तो वो शीट से लेके पर्लिन तक, फिर पर्लिन का लेके रूफ ट्रस तक, उसका लेके हमारा टोटल जो डेड लोड आया है वो ये है। नाउ देखो ये एक्चुअली ये वेल्डेड शीट का जो ये सेल्फ वेट है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब यूडीएल में ऑलमोस्ट रहने की वो कॉन्सेप्ट में किया जाता है। तो 53.7 प्लस 0.53 इंटू एरिया, तो ये हमारा टोटल डेड लोड कंसीडर किया जाता है रूफ ट्रस का। इसके साथ 0.53 इंटू एरिया, मतलब एरिया के साथ ऑलमोस्ट हमारा 0.53, 0.53 का मतलब क्या है, 0.53 का मतलब ये है 100 में 53, 100 में 53 पोर्शन जो है वो एरिया के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एरिया का 53% ही कंसीडर करेंगे प्लस टू दिस लोड, ओके 53.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये लिया जाता है, प्लस ये इसको फिर ऐसे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट कैलकुलेशन फॉर नोडल डेड लोड, नोडल डेड लोड मतलब कि हर नोड में कितना लोड आएगा, यहाँ पे नोड मतलब के देखो, ओके देखो यहाँ पे नोड कितना सारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे भी 8 रहेगा, है ना। तो टोटल 16 नोड, सो दिस इज कॉल्ड द नोड। हर एक नोड पे हमारा जो ये, सिंस द ट्रस है 16 इंटरनल नोड्स एट द टॉप कॉर्ड, तो हमारा इंटरमीडिएट नोडल डेड लोड जो है वो रहेगा ये जो हमारा डेड लोड ओवर 16 डिवाइडेड बाय 16। ये पूरा जो डेड लोड है, ये पूरा डेड लोड ये 16 नोड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हर एक नोड में कितना लोड रहेगा, 2.42। अब डेड ये तो है हमारा, इस पे आ रहा है, ये नोड में दिखा रहा है, पर रिमेंबर इन रूफ ट्रस the load are always carried upon these joints, remember ये इतने सारे जॉइंट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये हर एक जॉइंट पे अगर ये नोड का जो फोर्स है डिवाइड हो जाएगा तो ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ना। तो ये हमारे हर एक नोड में कितना है, हाउ मेनी नोड्स वी हैव, per node we have calculated the load to be this, and the dead load at n nodes will be divided by that 2, this will be that kilonewton, ओके। तो हमारा जो है डेड लोड का जो कैलकुलेशन किए उसके बाद डेड लोड को हम स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अभी यहां तक हमारा डेड लोड का जो कैलकुलेशन है वो हुआ है। नेक्स्ट इज विंड लोड।
ये हमारा IS 875 है. Remember we have discussed this part. तो यहाँ पे देखो विंड लोड एज पर IS 875 हमारा जो बेसिक विंड स्पीड है एज पर गुवाहाटी दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड. दिस इज गिवन, or if this was not given, if this were not given in the question, then you would have to find out as per its location. तो ये लोकेशन वाइज भी तुम लोग सर्च कर सकते हो. कैसे सर्च करोगे? वो हमारे देखो अपेंडिक्स ए में, यहाँ पे एक अपेंडिक्स नाम का एक पार्ट है, क्लॉज है, नॉट क्लॉज एक्चुअली, दिस इज अ सी इन अपेंडिक्स ए. यहाँ पे हर सिटी और टाउन के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका बेसिक विंड स्पीड दिया गया है. तो अगर गुवाहाटी का विंड स्पीड नहीं दिया रहता तो तुम लोग यहाँ से सर्च कर पाते. तो दिस इज गिवन अल्फाबेटिकली. इन डिक्शनरी में जैसे ढूंढते हो ना अल्फाबेटिकली, वैसे दिया गया है. देखो यहाँ पे गुवाहाटी, गुवाहाटी का जो है 50 मेंशन्ड है यहाँ पे. तो यहाँ से भी हम लोग ढूंढ सकते हैं. ओके, 50 meter per second. Now the basic wind load, the basic wind load F on roof truss by static wind method is given in clause 6.2 6.2.1 of IS 875. This is the formula. This is the formula to calculate the wind load on individual members. तो यहाँ पे क्या है, हमको ये देखो, हमको तो ये डेटा जो मिला ये है बेसिक विंड स्पीड उस लोकेशन का. अब इस स्पीड को लेके हम क्या करेंगे सिविल इंजीनियर्स? हमको तो लोड चाहिए, तो इसको लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. लोड कन्वर्शन में समझाई थी कैसे किया जाता है. अब लोड जो है वो तो हमारे स्ट्रक्चर के नजदीक का जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उसके ऊपर बेस करके किए थे. पर और भी एक सिनारियो या फिर कंडीशन है जिसको हम लोग कंसीडर नहीं किए थे. दैट वाज द एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर, CPE एंड CPI. दिस इज द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ बिल्डिंग. अब CPE और CPI से हम लोग ये और भी एक्यूरेट वे में विंड लोड को कैलकुलेट करेंगे. अब एक्सटर्नल और इंटरनल लोड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या था? मतलब अगर विंड जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में अगर हमारा स्ट्रक्चर रहा, और स्ट्रक्चर का जो ओपनिंग है, मतलब अगर कोई विंडो वगैरह ये सब अगर इस साइड में रहा, तो ये एयर अंदर जाके एक प्रेशर क्रिएट करेगा, एक टाइप का प्रेशर क्रिएट करेगा. और अगर यही विंड डायरेक्शन हमारा एक ये डायरेक्शन में आ रहा है और हमारा जो विंडो का डायरेक्शन ये ऑपोजिट साइड में रहा, तो ये एक काइंड का प्रेशर अंदर क्रिएट करेगा. ये जो प्रेशर का जो डिफरेंस रहेगा अंदर बाहर का, ड्यू टू दैट डायरेक्शन ऑफ विंड कमिंग टू द स्ट्रक्चर, तो ये हमको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. यही फेनोमेनन जो है हम इस पार्ट से समझते हैं स्ट्रक्चर को. ओके, तो देखो दिस इज गिवन हियर दैट व्हेन कैलकुलेटिंग द विंड लोड on individual structural elements such as roof and walls and individual cladding unit and their fittings, it is essential to take account of pressure difference between opposite faces of such elements or units. For clad structure, it is therefore necessary to know the internal pressure as well as external pressure. Then the wind load, if acting in the direction normal to the individual structural element of, will be this. तो एरिया तो हम पता कर लेंगे. पहले डिजाइन प्रेशर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उसके पहले हम CPI CPE कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं. ओके, सो एज्यूम द वॉल ओपनिंग बिटवीन 5% to 20%. मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वहां के अंदर का जो जितना सारा विंडोज हम लोग रखेंगे. देखो, अगर ये हमारा स्ट्रक्चर रहा, ये हमारा स्ट्रक्चर का एक वॉल रहा, ठीक है, यहाँ पे एक ही विंडो है. नाउ यू कैन से दैट हाउ मच ऑफ परसेंटेज दिस विंडो इज ऑक्यूपाइड टू दैट वॉल. ये वॉल अगर 100% है तो हम एक तरफ से बता सकते हैं फ्रॉम द विजुअल अजम्पशन दैट दिस ओपनिंग इज
ऑलमोस्ट 10% ऑफ दिस वॉल, ये जो विंडो है ये वॉल का 10% में ऑक्युपाइड है, इजंट इट, मतलब अप्रोक्सीमेटली नॉट एक्यूरेटली। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर का अंदर का जो ओपनिंग रहेगा वो रहेगा 5% से लेके 20% तक। वॉल एरिया मतलब जो वॉल हम देंगे स्ट्रक्चर में, वो वॉल एरिया में 5% टू 20% ओपनिंग हम लोग रख के एज्यूम करके ये प्रेशर डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। सो क्लॉज 6.2.3.2 हियर, सी in this clause this has given that buildings with medium and large opening। अब मीडियम और लार्ज ओपनिंग इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे? देखो, बिल्डिंग विथ मीडियम एंड लार्ज ओपनिंग्स में ऑल्सो एग्जिबिट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरनल प्रेशर डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ विंड। बिल्डिंग विथ मीडियम ओपनिंग बिटवीन 5 to 20% of wall area shall be examined for internal pressure coefficient plus 0.5 and later for internal pressure coefficient for minus 0.5। मतलब कि देखो, ये हमारा बिल्डिंग के अंदर का जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा वो तो हमारा जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दैट विल डिपेंड अपॉन द amount of opening which we will be considering in our structure। तो ये हमको दोनों टाइप में ही देखना पड़ेगा कि ये जो इंटरनल प्रेशर क्रिएट होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मतलब कि वो सक्शन क्रिएट करेगा या फिर वो बाहर प्रेशर क्रिएट करेगा। ओके, तो ये हमको दोनों वैल्यू से देखना पड़ेगा। और ये प्लस माइनस 0.5 किस परसेंटेज ऑफ वॉल एरिया का जो ओपनिंग है एक्सपोजर की कहाँ पे अप्लाई होगा? 5 to 20% जब रहेगा। और अगर इफ द बिल्डिंग विथ अ लार्ज ओपनिंग, बहुत लंबा ओपनिंग है, मतलब कि 20% से भी ज्यादा, तो हम प्रेशर कोफिशिएंट क्या प्लस माइनस 0.7 कंसिडर करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग 5 to 20% ले लिए हैं, तो प्लस माइनस 0.5 लेंगे। ये हुआ हमारा सीपीआई, इंटरनल प्रेशर को कैसे जज करेंगे। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ सीपीई, द एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट। इसको जानने के लिए हमको कुछ चीजें पहले मालूम करनी पड़ेगी, which are like roof angle equal to अल्फा tan इनवर्स 1/5। देखो, हम लोग तो क्वेश्चन में पहले हम देख लिए थे कि दैट रूफ स्लोप इज 1 to 5। तो ये 1 to 5 अगर है तो रूफ स्लोप, तो ये हमारा एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? ये एंगल हम लोग पता कर लेंगे। जस्ट सो एंगल को पता करने के लिए देखो, tan इनवर्स 1/5, तो ये एंगल हमारा हो गया 11.3 डिग्री। अब हाइट ऑफ बिल्डिंग टू ईव, ये ईव क्या है? ईव मैं बताई थी, एक्सप्लेन जब की थी, ये है ईव। तो फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू दैट हाइट इज कॉल्ड ईव हाइट। तो ये 8 मीटर है। ओके, दिस इज 8 मीटर। So this is 8 meter. Our roof angle we know. The short dimension of building in plan। short dimension मतलब कि building plan क्या है? यहाँ पे building A, यहाँ पे कौन सा वाला short है? 50 या 20? 20। So this is our shorter dimension। तो ये dimension हमको चाहिए, that is W। अब मैं बताऊंगी कि ये कहाँ पे लग रहा है। देखो, in IS 875 part 3, this is given in table 5। table 5, okay, see, in this table 5 the external pressure coefficient is given। अब देखो, एक है इंटरनल प्रेशर, एक है एक्सटर्नल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि बिल्डिंग के अंदर का ओपनिंग कैसा रहेगा, मतलब कि विंडो कितना कितना
मतलब कितना ज्यादा खुला रहेगा हमारा स्ट्रक्चर, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट। और एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट किस पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है? हमारा ये ईव हाइट, हमारा ये शॉर्ट स्पैन, उसका जो रेशियो और ये रूफ स्लोप, ये एंगल, मतलब कि इसका रेशियो और ये रूफ एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा जो विंड लोड। इस पैरामीटर को जो इफेक्ट करेगा विंड लोड, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट को जज करेंगे। ओके, तो हमारा रूफ, हमारा H by W का वैल्यू कितना है देख लेते हैं। H is 8, eve height from ground level 8 and W is 20, that shorter span. So ये है 0.4 which is less than 0.5। तो ये हमारा 0.4 मतलब कि देखो ये 1/2 इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट 0.5। तो ये हमारा देखो ये है लेस देन इक्वल टू, तो इस कैटेगरी में आएगा हमारा बिल्डिंग हाइट रेशियो। अब रूफ एंगल कितना आया है 11.3 डिग्री। अब 11.3 डिग्री देखो यहाँ पे 0, 5, 10 हर ये 5, 10, 10 करके और 10, 15 ऐसे इंटरवल में दिया गया है। तो इन विच सेगमेंट आवर एंगल विल लाई? इन दिस सेगमेंट 10 to 20 हमारा 11.3 लाई करेगा इन दोनों डिग्री में। अब इन दोनों डिग्री में ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, देखो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है ये हम ले लेंगे, एक चार्ट को पूरा अलग कर लेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे जिस टेबल में ये पहले हम लिखेंगे बिल्डिंग हाइट रेशियो, रूफ एंगल, विंड एंगल थीटा 0 डिग्री, विंड एंगल थीटा 90 डिग्री। अब EFGH ये मैं चीज बताऊंगी। देखो ये है हमारा जो प्लान, दिस इज आवर प्लान। ओके, अब देखो यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है विंड एंगल का जब 0 डिग्री रहेगा,